Hello. Good morning, friends. Today, we are going to start the third unit, microcontroller programming. In this unit, you are going to learn about the programming of the microcontroller. First of all, I am giving you a brief idea about how you can program the microcontroller with the help of tools. Okay, so that's why we need software development tools. For that, we are going to learn about what are the different types of software development tools are available. Similarly, here which type of assembler directives will be needed for you, that I will highlight, and then later on I will turn toward the different instructions of the microcontroller. ध्यान में रखना कैसा है कि मैंने लास्ट यूनिट में आपको पोर्ट्स के लिए थोड़ा कुछ दो एक इंस्ट्रक्शन बताए. ओके, आई होप that you cannot able to understand it very properly. Okay, so for that point of view, that I'm going to start this third one unit. So that's why once you will have an idea about that, how you uh, see the instructions of the microcontroller, then you can able to write the instructions for that controller, right? सो मैं यहाँ धीरे धीरे पहले आपको यहाँ पर इससे धीरे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर है क्या, माइक्रो कंट्रोलर का वर्ल्ड होता कैसा है, आप उसको प्रोग्रामिंग कैसे कर पाओगे. ओके, प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पर टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी बातें मैं यहाँ पर पहले कवर कर रहा हूँ. ओके, सो दैट्स वाई उसके बाद मैं यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन सेट पूरा आपको फैमिलराइज कराता हूँ. और इंस्ट्रक्शन फैमिलराइज कराने के बाद जो सेकंड यूनिट का एक पॉइंट है, पोर्ट्स प्रोग्रामिंग, तो वो पॉइंट भी हम यहाँ पर कवर आउट करेंगे. तो सो डोंट बॉदर अबाउट इट, दैट पॉइंट विल बी कवर्ड हियर आल्सो. ओके, सो ऐसा मत समझो कि वो मेरा पॉइंट वहाँ पर चला गया है, वो तो कवर नहीं होगा. सी, नाउ I am talking about the curriculum that which you have to understand, or which you have to learn in the third unit. Okay, so I am showing you some slides. आई होप आपके सामने कुछ स्लाइड्स हैं, राइट? हाँ, आपको दिखाई दे रहा होगा माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग यूनिट नंबर 3, राइट? नाउ दिस इज अ करिकुलम ऑफ योर third year. Okay, so here in this unit you are going to learn about the 8051 microcontroller. Okay, study of data sheets. ओके, तो डेटा शीट्स का स्टडी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा. देन प्रोग्रामिंग यूजिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. ओके, देन assembler directives, org, db, eq, and code data and programming tools. Okay, like simulator, emulator, debugger, assembler, cross compiler. Okay, cross c compiler, editor, assembler, linker. Okay, these are the basic things that you need to understand the programming. Okay, this is a theoretical point, so I cover it very shortly. Okay, then addressing modes in 8051, what are the different addressing modes are there. Okay, then programming using these modes. Okay, using move and move, movc, move and movex instructions. Okay, सिमिलरली अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस आपको बताऊंगा, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, उसके साथ साथ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड कंपेयर इंस्ट्रक्शन लर्न करेंगे, उसके बाद बिट मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शंस लर्न करेंगे. ओके, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे. और आखिरी में आपको यहाँ पर कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल, और स्टैक और सबरूटीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस रहेंगे. तो वन बाय वन मैं ये सारी बातें यहाँ पर कवर कर रहा हूँ. टॉपिक बहुत बड़ा है. ओके, पेशेंस रख के, पेशेंट मत हो जाना. ओके, पेशेंस रख के जरा ध्यान से सुनिए. कैसा है कि these are the core things. Okay, once you understand all these things, you can able to understand all the things of your programming. ओके, सो देखिए एक एक करके मैं आपको यहाँ पर इससे इंट्रोड्यूस कराते जा रहा हूँ. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट स्टडी ऑफ डेटा शीट्स. ओके, तो डेटा शीट्स की जरूरत क्यों पड़ती है. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर आई एम शोइंग यू द डेटा शीट्स.
Okay, now question arise here, why data sheets are important. Okay, whenever you are going to program the microcontroller, that time the data sheets are important because you are able to understand features of that controller, similarly the architecture, interfacing, as well as the instruction, as well as the different waves generated by this controller. Okay, so for that point of view here, also which peripheral are available inbuilt, as well as which peripheral you can interface with external one. So these things you can able to understand from the data sheets. Right now I'm just sharing that data sheet, one data sheet. I send you this data sheets with your WhatsApp group. Okay, so you can download it and try to take a print, but its length is near about 27 page. All the pages are not required for our curriculum. Only you just understand what things are available in the डेटा शीट. सो दैट्स वाई 2-3 पेजेस आपने प्रिंट किए तो बहुत हो जाएगा, सारे के सारे पेजेस प्रिंट करने की आपको जरूरत नहीं रहेगा. सो देखिए, द फर्स्ट पेज ऑफ द डेटा शीट्स विल बी शोइंग यू लाइक दिस फीचर्स. Okay, so that's why features are given here. I already given you the idea about the features of the microcontroller. So that's why whenever I go for teaching of any controller or any processor, so first I refer the data sheets, because data sheets will give you truths. Okay, क्योंकि डेटा शीट्स में सभी सभी सच्ची सच्ची बातें रहती है, क्योंकि आपको अगर कोई किताब अगर रेफर करोगे तो किताबों में शायद ही वहां पर गैदर्ड थिंग्स रहता है, लेकिन ये एटमेल का या इंटेल का अगर आप रेफर करोगे डेटा शीट्स, तो आपको वहां पर ये एटमेल ने क्या इंट्रोड्यूस किया है या आपको इंटेल ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, और अब जो कंट्रोलर आप यूज करोगे तो जनरली एटमेल आपके लिए सामने में लेके आया, इसलिए क्योंकि आज एटमेल का बोलबाला है जगह में. ओके, यानी आप जो भी कंट्रोलर आप मार्केट में परचेज करने जाओगे तो दुकानदार आपको एटमेल का माइक्रो कंट्रोलर देगा. क्यों? द रीजन इज दैट इंटेल और एटमेल में आपको यहाँ पर कॉस्ट डिफरेंस यहाँ पर इमीडिएट सामने आपको समझ में आ जाएगा. सो दैट्स वाई वहाँ अगर इंटेल का इसे अगर आता होगा फॉर एग्जांपल 40 टू 80 की रेंज में, तो वैसा ही यहाँ पर एटमेल का भी कंट्रोलर आ जाएगा आपको 40 टू 80 में. ओके, लेकिन वहाँ पर अगर आप फीचर्स की बात करोगे तो फीचर्स में वहाँ पर वेरिएशंस रहेगा. ओके, तो देखो आप वहाँ पर इजीली वहाँ पर परचेस करते समय कॉस्ट को कंपेयर करो और उसके हिसाब से आपको जो रिलायबल लगेगा तो वो कंट्रोलर आप चूज करो. ओके, मैं ये नहीं बताऊंगा वीडियो में कि आप ये इंटेल का ही लो या एटमेल का ही लो, यू डिसाइड इट. राइट, तो कैसा है कि यहाँ पर फीचर सेट आपके सामने रहेगा, तो ये फीचर सेट आपको फर्स्ट पेज में दिखाई देगा और उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया है. राइट, व्हाट द थिंग्स आर अवेलेबल विद द कंट्रोलर. ओके, कंट्रोलर का नंबर भी आपको दिया है 8089S51. ओके, इसमें आपको बोला है भाई इट इज एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर. ओके, इसमें आपको कहा है भाई 4 KB का इन सिस्टम प्रोग्रामेबल फ्लैश मेमोरी आपको अवेलेबल है. मैंने पहले ही कहा भाई कि जैसा आप कंट्रोलर में जाओगे तो कंट्रोलर में आपको रैम और रोम का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो आपके सामने यहाँ पर हाईलाइटेड है रैम और रोम का कॉम्बिनेशन, तो सामने ही आपको यहाँ पर फ्लैश मेमोरी यानी रैम रोम की बात बताई है. ओके, जो रीड ओनली मेमोरी है, प्रोग्रामेबल मेमोरी है, वो प्रोग्रामेबल मेमोरी आपके सामने यहाँ पर इमीडिएटली रख दी, यानी आप आपके प्रोग्रामिंग की जो साइज है वो ढूंढो और उसके हिसाब से आपको कितनी ऑन चिप मेमोरी वहाँ पर रिक्वायर्ड है तो वह आप वहाँ से ले लो. इसलिए डेटा शीट्स को जनरली प्रेफर किया जाता है कि भाई आप कंट्रोलर को जब यहाँ पर प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हो तो वहाँ पर डेटा शीट सबसे पहले वहाँ पर इम्पोर्टेंट रह जाता है. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अभी आगे और देखते हैं कि ये डेटा शीट्स में होता क्या है. सी, डेटा शीट्स में आपको आगे यहाँ पर दो तरह के पैकेज, सॉरी 3 तरह के पैकेज आपको सामने यहाँ पर बताए हैं. PDIP यानी ड्यूअल इन लाइन पैकेज. ओके, PLCC ओके क्वाड्रेचर इन लाइन पैकेज,
और एक आपको यहाँ पर और एक दिया है क्वाड्रेचर इन लाइन पैकेज, उसका नाम लिया है TQFP। ओके, तो जनरली कैसा है कि आपको 44 पिंस के ये आईसीज आपके पास अवेलेबल है। तो देखो, दो पैकेज आपके पास है। क्वाड्रेचर इन लाइन पैकेज कैसा है, किसी के पास 44 पिन का स्टैंडर्ड पैक अवेलेबल रहता है, किसके पास 40 पिन का क्वाड्रेचर इन लाइन पैक अवेलेबल रहता है। सो दैट्स वाई जैसा आपको 8051 में 40 पिन है, वैसे के वैसे ही आपको यहाँ पर भी PLCC में अवेलेबल है, या PQFP में आपको 44 पिन का पैकेज है। ओके, सो वहाँ पर कुछ पिन्स आपको यहाँ पर डिफाइन नहीं की है, NC करके बोला है, तो NC बोले तो नॉट कनेक्टेड है, मिनिमम वहाँ पर 4 पिन्स रहेगा कि वो 4 पिन्स आपको वहाँ नॉट कनेक्टेड रहेगा और आप उसके द्वारा वहाँ इस कंट्रोलर को यूटिलाइज कर सकते हो। Got it my point? So that's why these are the different packages are available with the data sheets. Okay, तो जनरली ये इस तरह का ये पैकेज अवेलेबल रहता है। बाद में ब्लॉक डायग्राम है आगे। आपको जो मैंने ब्लॉक डायग्राम में इंटरनल आर्किटेक्चर आपको बताया, वह इंटरनल आर्किटेक्चर यहाँ पर और एलैबोरेटेड किया है। कैसा, मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव यानी थोड़ा प्रिजर्व्ड आपको आर्किटेक्चर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए सामने सभी बातें दिख रही है। ओके, पोर्ट्स है तो पोर्ट 0 अलॉन्ग विद ड्राइवर, पोर्ट 2 अलॉन्ग विद ड्राइवर, ड्राइवर की लाइंस आपको बताई है P0.0 से लेकर P0.7, P2.0 से लेकर P2.7 तक। ओके, इंटरनल क्या क्या अवेलेबल है, पोर्ट 0 का लैच है, पोर्ट 2 का लैच है, बाद में फ्लैश मेमोरी है। ओके, रैम एड्रेस जनरेटर रजिस्टर है, रैम है। ओके, बी रजिस्टर है, A यानी ए रजिस्टर है, टेम्पररी रजिस्टर 1 एंड 2 अवेलेबल है, यानी इंटरनली आपको कुछ टेम्पररी रजिस्टर भी अवेलेबल होते हैं, तो वो रजिस्टर आपको ALU के साथ आपको यूज किए जाते हैं। ओके, PSW है। बाद में यहाँ पर देखिए आपको प्रोग्राम काउंटर, ड्यूअल PTR, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंटर, बफर, प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर। ओके, ये सारे जो आपको यहाँ पर इंटरनल आर्किटेक्चर है, तो ये आपको वेल एलैबोरेटिव इंटरनल आर्किटेक्चर है। तो जनरली ये आर्किटेक्चर जो डिजाइनर्स है वो डिजाइनर्स यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह का आर्किटेक्चर शायद आपने पहली बार देख रहे होंगे। तो इस तरह का डेटा शीट्स आपको यहाँ रीड करते, एटलीस्ट रीड करते आना चाहिए। कैसा है, आप BE पास आउट होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता नहीं रहता कि भाई मैंने डाटा शीट्स देखा या नहीं। ओके, सो दैट्स वाई फॉर योर इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हियर, कैसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट मिनी प्रोजेक्ट करते हैं या लार्ज प्रोजेक्ट करते हैं, तभी भी डाटा शीट रेफर नहीं करते, बस खाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना आहे, टाकरे भो प्रिंट, टाकरे भो प्रिंट टाकरे, आणि लगेच ते आपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये घेऊन घेतो आणि बाइंड करून तो तसा जमा पण करून टाकतो। तर रिमेंबर, ओके, यू शुड एबल टू वॉच द व्हाट द डेटा शीट्स आर देयर। ओके, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह का डाटा शीट्स करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया है। कैसा है कि आपको एटलीस्ट ये आइडिया रहे कि भाई डाटा शीट्स होता क्या है और डाटा शीट में रहती क्या है बातें, राइट। सो दैट्स व्हाई ये डाटा शीट्स आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप यहाँ डाटा शीट्स के द्वारा जाइए। ओके, बाद में पिन डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसा मैंने आपको पिन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया है। VCC, ग्राउंड, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 के सारे पिंस। ओके, पोर्ट 3 में क्या ड्यूअलिटी स्ट्रक्चर है, ये भी सारे आपको बातें यहाँ पर बताई है। RST, ALE या प्रोग है, ओके, या PSEN है, EA, VPP, एक्सटर्नल 1, एक्सटर्नल 2, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताई है। ओके, बाद में इस माइक्रो कंट्रोलर में स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कौन कौन से आते हैं, तो ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। ओके, तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में आपको A रजिस्टर, B रजिस्टर, PSW, IP, P3, P2, ये सारे जो है ये पार्ट है, तो उसमें सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर और देयर एड्रेसेस भी यहाँ पर आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये एक SFR मैप यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये SFR आप किस एड्रेस के ऊपर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, बाद में आपको इसमें जो इंटरनल रजिस्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपको बताया है इंटरप्ट रजिस्टर। ओके, तो ये इंटरप्ट रजिस्टर आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट किया है, या फिर ड्यूअल डेटा पॉइंटर रजिस्टर का फंक्शन क्या है, उसके एड्रेसेस क्या है, जो मैंने आपको PPTs में बताया एड्रेसेस, वो सारे मैंने यही से पिकअप किए थे। ओके,
क्योंकि कैसा है कि मेरे पास आएगा कहाँ से, कोई भी किताब में रॉन्ग भी रह सकता है, इसलिए मोस्टली मुझे जाना पड़ता है डेटा शीट्स के ऊपर। कैसा है कि वो आपके लाइफ टाइम की बात रहती है। अगर मेरे से कोई डाटा डाटा शीट में से, सॉरी, मेरे से अगर कोई यहाँ पर एड्रेस अगर आपको गलत गया, तो आप वो शायद ही याद रखे या शायद भूल भी जाए। लेकिन अगर किसी को याद रहा और कहीं वो बोल दे कि भाई ये एड्रेस था, और वो सामने वाला बोले अरे ये तो नहीं, रॉन्ग है, तो ऐसी सिचुएशन में इसलिए हमें पहले ट्रस्ट करना पड़ता है डेटा शीट्स के ऊपर। यानी आप वहां पर खोटा ना पड़ो यहाँ, इसलिए हमको यहाँ पहले डेटा शीट्स रेफर कर लेना पड़ता है। कैसा, अगर हम सही बात बताएंगे तो आप वहां पर सही आंसर दे पाओगे, और सही आंसर दे पाओगे तो वहां आपका यूज हो पाएगा। नहीं तो अगर मैं यहाँ पर रॉन्ग कई किताब से इंफॉर्मेशन ले लूँ और आप भी वहां पर और रॉन्ग बताएंगे, तो वो बोलेगा अरे इसको कुछ पता नहीं है, ये कुछ भी फेक नंबर बोल रहा है। सो दैट्स व्हाई ऐसा ना हो, इसलिए मुझे डाटा शीट्स आपको बताना जरूरी रहता है। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो इसमें और आपको एडिशनल रजिस्टर रहेंगे। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम मेमोरी क्या है, डाटा मेमोरी क्या है, वॉचडॉग रजिस्टर, ये तो आगे की बात है। और यूआरटी क्या है, ये जो अभी है लेटेस्ट ट्रेंड में, मैंने कहा कि भाई आपको लेटेस्ट ट्रेंड का आईसी अवेलेबल है मार्केट में। ओके, तो ये लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से लेटेस्ट फीचर्स अवेलेबल है। जो 1980s के जो फीचर्स है वो मैंने रिस्ट्रिक्टेड फीचर्स बताए, वो फीचर्स आपको थे या है। ओके, लेकिन उसी के ऊपर आपका एग्जाम भी है। लेकिन ये जो डेटा शीट्स है वो मैं लेटेस्ट करंट ट्रेंड का डेटा शीट्स बता रहा हूँ। यानी अगर आप मिनी प्रोजेक्ट कर रहे हो या आप अगर मेजर प्रोजेक्ट करने जाओगे, तो यू शुड हैव अ लेटेस्ट ट्रेंड आइडिया। okay, so that's why this idea I am giving you about this through data sheets. okay, so इसमें आपको आई रजिस्टर रहेगा। आई रजिस्टर में और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहते हैं, ये सारे मैं आगे थेरेटिकल स्ट्रक्चर में लेने ही वाला हूँ। ऑसिलेटर है या एक्सटर्नल ड्राइवर सर्किटरी है, वो कैसा रहता है, ये सभी बातें यहाँ पर रहती है। क्योंकि कैसा है कि कोई डिजाइन करता है तो वो डिजाइन यहाँ से अंडरस्टैंड कर पाएगा। ओके, सिमिलरली आप सीरियल प्रोग्रामिंग करो, पैरेलल प्रोग्रामिंग करो, तो वो उसके लिए आपको यहाँ पर सारा टेबल दे के रखा है। ओके, आप कौन सा पोर्ट में कौन सी पिन कैसी यूज करोगे, ये सारी बातें भी आपको यहाँ पर जानकारी दी है। अगर आप यहाँ पर कोई बोर्ड अगर डिजाइन करना चाहते हो स्पेशली कि भाई मुझे माइक्रो कंट्रोलर का खुद का बोर्ड डिजाइन करना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर सारी बातें आपको दे के रखी है कि आप वहाँ यहाँ आप उसे कैसे यूज कर पाओगे, कौन सी पिन कहाँ कनेक्ट करोगे, और कनेक्ट करते समय आपको कितने वैल्यू का रजिस्टर लगने वाला है। देखिए अभी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे के रखी है 3 to 33 मेगाहर्ट्ज। मैंने तो आपको 4 to 16 मेगाहर्ट्ज का बताया। जनरली अभी कैसा है, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से ये वेरिएशन हुआ है। तो रिमेंबर, इस तरह ये वेरिएशन यहाँ रिक्वायर्ड रहता है। तो इसलिए आपका नॉलेज भी अपडेट करना मुझे जरूरी है कि भाई आप यहाँ पर इस तरह का देख पाओ, और उसके द्वारा अगर आप कहीं फ्यूचर में अगर आप कहीं इस पर्टिकुलर कंट्रोलर को यूज कर रहे हो, तो यू शुड एबल टू यूटिलाइज इट। ओके, यू शुड एबल टू शो इट वेरी फैंटास्टिकली। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पर मैं इसके साथ इसको क्विट करता हूँ। ओके, ये जो डाटा शीट्स है, ये डाटा शीट्स आप रेफर करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया हूँ, तो आप वहाँ पर वो डाटा शीट्स का स्टडी करिए। आपके पास नियर अबाउट 5-6 पेजेस अगर प्रिंट कर लेते हो तो वो बेटर रहेगा। ओके, यानी कैसा है कि वो आपके नोट्स में वो ऐड हो जाएगा, और आप डेटा शीट्स का स्टडी किए हैं, ये आपको भी समझ में रहे, याद रहेगा कि भैया आई डिड स्टडी ऑफ डेटा शीट्स। ओके, कोई डाउट रहेगा तो आप डेटा शीट्स के बारे में कभी भी मुझसे पूछो, मैं आपको वहां पर 101% आपको रिप्लाई करूंगा। डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट इट एनीथिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर से मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में जा रहा हूँ। डेटा शीट्स का जो पॉइंट था, वो डेटा शीट्स का पॉइंट अभी यहाँ पर स्किप करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है असेंबली लैंग्वेज। नाउ हियर क्वेश्चन अराइज होता है, हम किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। रिमेंबर, आप लोग अभी यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का स्टडी कर रहे हो या माइक्रो प्रोसेसर का स्टडी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज यानी सी, या आप यहाँ पर C++ या फिर VB वगैरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लर्न कर रहे हो। आप यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज स्टडी यहाँ पर कर रहे हो, असेंबली लैंग्वेज का स्टडी आप यहाँ पर कर रहे हो। लेकिन क्वेश्चन माइंड में आएगा कि भाई ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होता क्या है, कैसे होता है, इसमें करना क्या है।
Okay, so that's why I'm giving you idea about the assembly language programming with the help of these slides. Okay, see, मैं यहाँ पर रीड करते जाता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि भाई ये होता क्या है. Okay, now everyone is familiar with the personal computer, so that's why each personal computer has a microprocessor. Okay, that manages the computer's arithmetic, logical, and control activity. Okay, now remember, the purpose of the microcontroller is to manage the arithmetic and logical as well as controller activity. Okay, so this is the main functionality of the microprocessor or controller. Okay, so each family of the processor has its own set of instruction. यानी कभी भी अगर माइंड में आया कि भाई ये कंट्रोलर में क्या होता है, ये कंट्रोलर ऑपरेट कैसे होता है, तो रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड. ओके, that every controller has its own set of instruction, okay, for handling various operation like getting input from keyboard, displaying information on screen, and performing various other jobs. Okay, यानी आप अगर कहीं डाटा लेना चाह रहे हो या कहीं आप डाटा डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आपको वहां पर रिक्वायर्ड रहेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी एखादा स्विच होगा या मल्टीपल स्विच हो गए, यानी सेट ऑफ स्विच होगा, या एखादा मैट्रिक्स कीपैड का स्विच होगा. ओके, या एखादा सेंसर होगा, या एखादा कोई पेरिफेरल डिवाइस होगा जो आप उसे इंटरफेस कर रहे हो. ओके, तो आप उसके द्वारा भी डाटा दे सकते हो. या अगर आपको ऐसा लगा कि भाई वो डाटा डिस्प्ले करना है तो आप डाटा डिस्प्लेइंग के डिवाइसेस यानी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर जा सकते हो. वो एलईडी हो सकता है, 7 सेगमेंट हो सकता है, या वह एखादा एलसीडी हो सकता है. ओके, उसके ऊपर आप डाटा को डिस्प्ले करा रहे हो. तो इस वजह से यहाँ पर कहा कि भाई यू आर गोइंग टू हैंडल वेरियस ऑपरेशंस लाइक गेटिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, एंड यू मे परफॉर्म एनी अदर एक्टिविटी. एनी अदर एक्टिविटी मीन्स डाटा लो, उसके ऊपर मैनिपुलेशन करो, और मैनिपुलेशन करने के बाद उसे वहां पर फिर से डिस्प्ले आउट करो. अगर आप ये इस तरह के अगर एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम. ओके, दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके, this set of instructions are called as machine level language instructions. Okay, so that's why assembly level language में आप यहाँ पर ये understand कर सकते हो. So that's why machine level language या machine language instructions are nothing but an assembly language programming. तो जब भी आप यहाँ पर मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करते हो तो मशीन लेवल लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शन रहती है वह आपको इन टर्म्स ऑफ वंस एंड जीरोस में लिखी रहती है. द प्रोसेसर विल अंडरस्टैंड ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विच आर strings of ones and zeros. Okay, however, machine language is too obscure and complex for using in software development. So the low level assembly language is designed for a specific family of processor that represent various instruction in symbolic code and more understandable format. Okay, getting the meaning? Okay, so remember assembly level language programming is nothing but writing. Okay, जो आप assembly level language programming ले रहे हो तो वो the purpose of that assembly level language programming means that instruction are written in the form of English level language. Okay, तो याद रखिए आप जो इंग्लिश लेवल लैंग्वेज आप ABCD के द्वारा अंडरस्टैंड करते हो तो वैसा ही यहाँ पर हम माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की भी इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लेटर्स में हम उसको फॉर्म करने वाले हैं. तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल रहेगा, याद रखो. ओके, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करता है? वो यूज करता है मशीन लेवल लैंग्वेज. ओके, सो याद रखना मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में एक छोटा सा फर्क रहेगा.
ओके तो असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल मैटर विच विल बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन बीइंग। ओके और मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन अगर ऑब्जर्व करते हो तो मशीन लेवल लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शन है वो वहां पर सिर्फ कंट्रोलर या प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सकता है। यानी कहने का मीनिंग, आप अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो वो इंस्ट्रक्शन आप अंडरस्टैंड कर पाओगे लेकिन कंट्रोलर या प्रोसेसर नहीं। और अगर आप कोई मशीन लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो कंट्रोलर या प्रोसेसर वो अंडरस्टैंड कर पाएगा, आप नहीं। ओके अगर मैंने आपको कहा 10101111 तो आप अंडरस्टैंड कर पाए क्या? आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। 101111 मीन्स बोले तो क्या आप बोलोगे ये क्या है सर, ये काय का नंबर है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट। रिमेंबर ये कुछ नंबर नहीं है, ये हमने यहाँ पर उसको नाम दिया है। ये इसका नाम रहेगा MOV। रिमेंबर इसका क्या नाम रहेगा? फॉर एग्जाम्पल MOV। तो MOV आप अंडरस्टैंड कर पाओगे लेकिन वो कंट्रोलर या प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर पाएगा क्या? नहीं। ओके यानी आपके लिए नाम क्या है मूव, लेकिन कंट्रोलर के लिए नाम क्या है 101111। ओके तो ये अंडरस्टैंड कर पाएगा इस तरह। सो दैट्स व्हाई ये मेजर डिफरेंस रहेगा असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग और मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। ओके सो दैट्स व्हाई याद रखिए, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आपके लिए रहता है, मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कंट्रोलर या प्रोसेसर के लिए रहता है। और इन बिटवीन जो रहता है यानी आप अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं तो कंट्रोलर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाता है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएटर कौन रहेगा? इंटरमीडिएटर आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर असेंबलर। The purpose of the assembler is to convert the assembly level language programming into the machine level language programming. याद रखना, what is mean by assembler? I am telling you the definition of the assembler. Assembler is nothing but a converter which will convert the assembly language program into the machine level language program. Okay, तो assembly level language में जो प्रोग्राम रहता है वो इंग्लिश लेटर में रहता है और मशीन लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम रहता है वो 1010 फॉर्म में रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। गॉट द मीनिंग? कोई डाउट भाई? ओके now here one slide is in front of you, advantages of assembly language. Okay, an understanding of assembly language provides you knowledge of what the knowledge will be given by the assembly language. Interface of program. Okay, with the help of assembly level language you will get the interface of program with OS. You can do this activity, processor and BIOS. Okay, so you are going to interface a program with OS, processor and BIOS. Similarly, the second advantage is what? Representation of data in memory and other external devices. This is the biggest advantage. How processor access and execute the instruction, that you can able to understand. Similarly, how instruction access and process the data and how program access the external devices. देखो ये एडवांटेजेस आपको यहाँ पर इसलिए लिख के दिए क्योंकि यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड okay what is the major advantages of assembly level language programming. Okay so that's why remember I am again repeating you, the first advantage is interface of programming with OS, processor and BIOS. Okay so this is the major advantage of assembly level language programming. You can able to interface your program, your written program with OS, operating system, processor, ओके या जो बायस है, बायस रूटीन है, उसके साथ आप यहाँ पर उसे इजीली इंटरफेस कर पाते हो। ओके सेकंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नाउ व्हाट एवर डाटा, नाउ डाटा आपके पास कहाँ से आएगा? डाटा आपके पास आप जनरेट करोगे वाया यूजिंग सेंसर्स, वाया यूजिंग अ स्विच, ओके वाया यूजिंग अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इंटरेक्शन। ये डाटा का जनरेशन आपके ऊपर रहेगा। यू कैन एबल टू स्टोर योर डाटा इनटू द मेमोरी। ओके देखो आपके पास मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल आप कल मोबाइल परचेस करके लाए मार्केट से, नया नया फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से आपके पास मोबाइल आया। मोबाइल में आपके सारे नंबर्स
या आपका जो भी डाटा है वो ऑलरेडी प्रीपेड रहेगा क्या, पका पकाया रहेगा क्या, वहां पर आपके जो फ्रेंड्स के नंबर है, मेरा नंबर है, वो वहां पर ऑलरेडी इनबिल्ट रहेगा क्या, नहीं, वो पूरा ब्लैंक रहता है। यानी आपको मोबाइल मिला, मोबाइल में डाटा ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट होता है क्या, क्वेश्चन का आंसर रहेगा नहीं। वहां पर डाटा किसको जनरेट करना पड़ता है, ह्यूमन बीइंग को। ह्यूमन बीइंग को कैसे जनरेट करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ कीपैड, विद द हेल्प ऑफ एनी अदर मेमोरी डिवाइसेस, बराबर है। आप अगर उसे यूज करना चाहते हो तो आपको खुद मेरा मोबाइल नंबर टाइप करके सेव करना पड़ेगा, या आपके फ्रेंड्स के नंबर टाइप करने पड़ेंगे और सेव करने पड़ेंगे, या आप कहीं से उसे मेमोरी कार्ड से लेकर आओगे, या आजकल का जमाना ऐसा है कि भाई आज आप गूगल में आपका ईमेल आईडी अगर डाल दिया है तो आपके गूगल में कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स के द्वारा आपके सारे नंबर इमीडिएटली अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, तो ये बात है। लेकिन अगर आपके पास मेमोरी है वो भी ब्लैंक है, आपका कोई एप्लीकेशन आप डिजाइन कर रहे हो तो वहां पर डाटा आएगा यूजिंग कीपैड या एखादे सेंसर्स के द्वारा। ओके, तो रिमेंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन मेमोरी एंड अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस। ओके, सो दिस इज द बिगेस्ट utility of assembly level language programming. Third, how processor will access and execute instruction, that will be depend on this. Okay, so that's why how processor will access and execute the instruction, that will be done with the help of this assembly level language programming. How instruction access and process the data. Okay, then similarly here how program will access the external devices. Okay, so this is the main thing, okay, required for provided by the assembly level language programming. Okay, other advantages of using assembly level language are it required less memory and execution time. Okay, so when you are using the assembly level language programming, it required less memory as well as execution time will also minimum. Okay, similarly it allow hardware specific complex job in an easier way. Okay, यानी कैसा है कि अगर आप मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर जाते हो तो वहां पर 1 और 0 का यूटिलाइजेशन होता है, तो 1 और 0 का यूटिलाइजेशन करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट अलो हार्डवेयर स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स जॉब इन एन इजियर वे। यानी आपको जो हार्डवेयर कोई कनेक्ट करना है वो कनेक्ट करना यहाँ पर बहुत इजी है विद द हेल्प ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। सो दैट्स व्हाई दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ assembly level language programming and it is suitable for time critical jobs। याद रखो यह जो assembly level language programming है ये आपको यहाँ पर टाइम क्रिटिकल जॉब्स के लिए सुटेबल है। यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मेमोरी इंटरफेस नहीं कर पाऊंगा, कोई पेरिफेरल इंटरफेस नहीं कर पाऊंगा, कोई डिवाइस यहाँ पर नहीं यूज कर पाऊंगा, so that's why it is very suitable because of the assembly level language program। It is the beauty of assembly level language program that you can easily do any kind of activity very fantastically। Got it? So that's why these are the advantage of assembly level language program। Okay, आई होप यू आर गेटिंग इट। हा हा मत बोलना, समझ लेना है आपको। हा हा बोलते तो हा हा ही रह जाएगा, इसलिए हा मत बोलो। एक तो पहले ही आप लोग कम लेक्चर करते हो, नियर अबाउट 4 to 5 स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं ऑनलाइन उस दिन लिया तो। सो दैट्स व्हाई यू ट्राई टू रिमेंबर एंड यू ट्राई टू वॉच ऑल द वीडियोस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट में जा रहा हूं। अभी अगर आप असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के द्वारा अगर कोई प्रोग्राम करना चाहते हो तो क्वेश्चन अरेज होगा कि भाई करोगे कैसे, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी मुझे। तो यहाँ याद रखिए अगर आप असेंबली लेवल लैंग्वेज के द्वारा कोई प्रोग्राम अगर लिखना चाहते हो तो वह प्रोग्राम लिखते समय आपको रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ असेंबलर डायरेक्टिव्स। ओके, असेंबलर डायरेक्टिव्स के द्वारा आप कोई भी असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम लिख सकते हो। अगर आपके पास असेंबलर है, असेंबलर अलग अलग टाइप के रहते हैं। ओके, असेंबलर आपके पास अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो मैं उसमें से एक नाम देता हूं, किल। किल नाम का सॉफ्टवेयर जो है वह हम माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। तो किल नाम का जो सॉफ्टवेयर है वह आपको अलाउ करता है टू राइट the program in assembly level language programming।
यही सॉफ्टवेयर अगर आप सी का कंपाइलर अगर आपके पास है तो आप हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में भी आपका प्रोग्राम लिख सकते हो। या किसी किसी ने शायद ही नाम सुना होगा, एमपी लैब है या एटमेल का आपको कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ओके, तो अलग अलग आर्डिनो का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, या फिर आपके पास कोई अदर कोड कंपोजर स्टूडियो भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे कैसा है कि स्टूडियो है, एवीआर स्टूडियो अवेलेबल है, तो बहुत सारे स्टूडियो अवेलेबल है, आप उनके द्वारा भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। उनमें भी यहाँ पर असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग और हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर बात बता रहा हूँ असेंबलर डायरेक्टिव्स की। तो रिमेंबर, आप अगर यहाँ पर अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम अगर लिखना चाह रहे हो तो वह प्रोग्राम लिखने के लिए आपको रिक्वायर्ड रहेगा स्टडी ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव्स। क्वेश्चन अराइज होगा, भाई ये स्टडी ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव्स होता क्या है, हमें ये असेंबलर डायरेक्टिव्स की स्टडी क्यों करना है। हमें तो पता है भाई, मैं जो माइक्रो कंट्रोलर लर्न करना है 8051 की प्रोग्रामिंग मुझे समझा दो सर, बस बहुत हो गया। देखो 8051 की प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए यहाँ पर असेंबलर डायरेक्टिव्स लगेंगी। ये क्यों लगेंगी, क्योंकि आपको वहां पर प्रोग्राम लिखना है, आपको प्रोग्राम का कोड लिखना है। वो प्रोग्राम का कोड स्पेसिफाई करने के लिए आपको रिक्वायर्ड रहेगा डायरेक्टिव्स का यूटिलाइजेशन। ओके, बिगनिंग कहाँ होगा प्रोग्रामिंग का, एंड कहाँ होगा प्रोग्रामिंग का, ये बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा ये असेंबलर डायरेक्टिव्स के द्वारा। देखो असेंबलर है तो पर्पज ऑफ द असेंबलर इज टू कन्वर्ट द असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज। लेकिन जब वो कन्वर्ट करेगा आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज, तब उसको ये पता रहना चाहिए कि आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग और एंड आप बताओगे विद द हेल्प ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव्स के द्वारा। Directives are used for giving direction to the assembler। याद रखो, directives are nothing but giving a direction to the assembler। ओके, जो असेंबलर रहता है वो असेंबलर को डायरेक्शन देने का, गाइड करने का, कमांड करने का काम असेंबलर डायरेक्टिव्स का होता है। तो इसीलिए मैं आपको ये स्टडी करवा रहा हूँ कि असेंबलर डायरेक्टिव्स होती क्या है और किस तरह के असेंबलर डायरेक्टिव्स यूज किए जाते हैं, और उनका यूज करने के बाद मुझे कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई डेफिनेशन बता रहा हूँ असेंबलर डायरेक्टिव्स की। ये असेंबलर डायरेक्टिव की डेफिनेशन के द्वारा ये अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये है क्या। याद रखिए, assembler directives are nothing but a instruction used by the assembler at the time of assembling a source program। यानी आप अगर कोई एक आधा प्रोग्राम खुद एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वह प्रोग्राम, मैंने पहले कहा कि भाई ये स्टार्ट कहाँ होगा एंड कहाँ होगा, ये बताने के लिए यहाँ पर असेंबलर डायरेक्टिव्स आर द इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय द असेंबलर at the time of assembling a source program। More specially, we can say assembler directives are the command or instruction that help you to control the operation of the assembler। यानी आपको जो भी यहाँ पर ऑपरेशन कैरी आउट करना है असेंबलर का, या असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करना है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो वहाँ पर असेंबलर को डायरेक्शन देने का काम यहाँ पर इन डायरेक्टिव्स का, इन कमांड्स का या इन इंस्ट्रक्शंस का होता है। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ असेंबलर के लिए होती है, ये प्रोसेसर का पार्ट नहीं होती है। सी द नेक्स्ट पैरा। असेंबलर डायरेक्टिव्स आर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू द assembler। These are not the processor, as the processor has nothing to do with these instruction। यानी प्रोसेसर को इन इंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रोसेसर को ये पता रहता है कि मुझे कौन सी इंस्ट्रक्शन यहाँ यूजर ने लिखी है, वही इंस्ट्रक्शन मैं एग्जीक्यूट करूंगा
जो असेंबलर डायरेक्टिव्स होता है वह डायरेक्टिव्स आपको सिर्फ हेल्प करती हैं प्रोसेसर के पास आपका प्रोग्राम लेकर जाने के लिए, राइट? सो these instructions are also known as pseudo instruction, ओके, या pseudo opcodes इसे कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? अभी नीचे आपको दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव्स इन प्रोग्राम, ओके, यानी आप यहाँ पर इस असेंबलर डायरेक्टिव्स का क्या यूज कर सकते हो। शो द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ प्रोग्राम प्रोवाइडेड टू द असेंबलर। पहले ही कहा मैंने, अगर आपको प्रोग्राम की शुरुआत करनी है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट बोले तो प्रोग्राम आपका जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ बताना है कि मेरा प्रोग्राम यहाँ एंड हो रहा है, शुरू यहाँ हो रहा है। तो बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ प्रोग्राम प्रोवाइडेड टू द असेंबलर विद द हेल्प ऑफ दिस असेंबलर डायरेक्टिव्स, ओके, ये पहली बात हो गई। सेकंड बात, अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो भाई, अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो प्रोग्राम लिखोगे तो प्रोग्राम लिखते समय आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि मेरा डाटा है कहाँ, मेरा डाटा किसने होल्ड किया है, बताना पड़ेगा या नहीं। आप किस डाटा के ऊपर ऑपरेशन करने वाले हो, वो डाटा किस वेरिएबल ने होल्ड किया है या किस मेमोरी ने उसे ऑक्यूपाई किया है, ये बताना पड़ेगा या नहीं। तो बताने के लिए यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड रहेगा वह डायरेक्टिव जो आपको डाटा डिफाइनिंग में हेल्प करें। सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड स्टोरेज लोकेशन टू डाटा, यानी आप इसके द्वारा जो भी आपका डाटा है वो डाटा को स्टोरेज लोकेशन यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। इट इज यूज टू गिव वैल्यू टू अ वेरिएबल। अगर आप कोई x नाम का वेरिएबल, y नाम का वेरिएबल, z नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हो तो आप वहां पर x की वैल्यू 10 रखना चाहते हो, y की वैल्यू 20 रखना चाहते हो और z को बोल रहे हो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो आप ये बताने के लिए यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड रहेंगे ये तीनों वेरिएबल x, y और z, राइट? तो x को वैल्यू असाइन करो, y को वैल्यू असाइन करो और z को वहां रिजल्टेंट वैल्यू को असाइन करना, ये काम आपका है। आप उसे बताओगे कंट्रोलर को कि आप इस तरह का प्रोग्राम मैं यहाँ लिखा हूँ और आप इस तरह का उसे अंडरस्टैंड करो। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है, डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट इट। यहाँ पर जितना इंग्लिश में तो समझ में आ रहा होगा, मैंने अभी तक प्रोग्रामिंग स्टार्ट भी नहीं की है, तो ये तो इजी है भाई, ये तो सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूँ, ये तो समझ में आएगा ही आएगा, भले भी यहाँ पर इसका मीनिंग और क्लेरिफाई करूंगा प्रैक्टिकली, यानी आपको जब प्रोग्रामिंग में मैं जाऊंगा तो ये सारी बातें वहां पर और एक बार दोहराऊंगा। इसलिए पहले गैदर कर रहा हूं कि आपके पास ये माइंड सेट हो जाए कि आप ये क्या यूज कर रहे हो। लास्ट पॉइंट यहाँ पर बताया है, डिफाइन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, प्रोसीजर और मैक्रोज ऑफ अ प्रोग्राम। देखो हम 8051 यूज कर रहे हैं तो 8051 में सेगमेंट्स नहीं रहता है, लेकिन आप अगर आपने नाम सुना है 8086 नाम का प्रोसेसर है, 8086 नाम के प्रोसेसर में आपने नाम सुना है सेगमेंट्स वहां पर रहते हैं। कौन कौन सी सेगमेंट वहां पर है आपने याद किया होगा, आपने वहां पर 8086 का प्रोग्राम वहां पर 8086 का आर्किटेक्चर वहां पर लर्न किया। वह आर्किटेक्चर में आपको ये बताया गया कि वहाँ सेगमेंट है, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। तो ये सेगमेंट डिफाइन करने के लिए आपको वहां पर सेगमेंट का बिगनिंग और एंड डिफाइन करना पड़ेगा, यानी प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट होता है, डाटा का एरिया कहाँ स्टार्ट होता है, स्टैक का एरिया कहाँ स्टार्ट होता है, या फिर आप अगर कोई एक्स्ट्रा एरिया डिफाइन करना चाहते हो डाटा के लिए तो कहाँ स्टार्ट होता है। तो इस तरह डिफाइन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ डिफरेंट सेगमेंट। ओके, सिमिलरली अगर आपका प्रोग्राम भाई 50 लाइन का है, 100 लाइन का है, तो आपको कोई यहाँ पर हर्ज नहीं है अंडरस्टैंड करने में। आप बोलोगे ओके सर हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, 5 लाइन, 10 लाइन, 50 लाइन, 100 लाइन बहुत ईजी है। लेकिन कल चल के आप प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लिखोगे
तो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में आपको रिक्वायर्ड रहेगा, वो प्रोग्राम जाएगा आपका 1000 लाइन, 5000 लाइन, 10,000 लाइन, 20,000 लाइन। अगर इतने लाइन अगर आते हैं तो वो लाइन के एक ही प्रोग्राम में एक ही फाइल में रखोगे? ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि अगर 5000 लाइन आते हैं, 10,000 लाइन का प्रोग्राम आता है, तो उसमें कई लाइन रिपीट होती हैं, कई लाइन रिपीट होती है। वो रिपीटेटिव स्टेटमेंट आपको सेपरेट करना पड़ता है, सेपरेट फाइल में लिखना पड़ता है, और सेपरेट फाइल बार बार आपको हमेशा अगर रिक्वायर्ड है कि वो एग्जीक्यूट करने की, आपको बार बार वो एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे कहते हैं सब रूटीन या सब प्रोग्राम या प्रोसीजर, ओके, या शॉर्ट प्रोग्राम, ओके। तो इस तरह उसे इस नाम से कॉल किया जाता है या बोला जाता है। तो वो सब रूटीन, शॉर्ट प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, प्रोसीजर, ये जो नाम है ये एक ही नाम है। ये सारे नाम हम यहाँ पर प्रोसीजर करके यहाँ पर कहते हैं, ओके। तो उनको यहाँ आपको बार बार प्रोग्राम में लेना पड़ेगा, प्रोग्राम के द्वारा उसके द्वारा एक्टिविटी कैरी आउट करनी पड़ेगी, और वो कैसे करना है ये सारी बातें बताऊंगा। तो आप वहां पर ये असेंबलर डायरेक्टिव्स का वहां हेल्प ले सकते हो। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट रहेगा भाई इसमें? ओके, अभी मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ कोई असेंबलर डायरेक्टिव्स यहाँ पर बताने के लिए। ओके, असेंबलर डायरेक्टिव्स है क्या, यहाँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ओके, एक एक करके आपको यहाँ पर बताते जाता हूँ और उसका मीनिंग भी यहाँ पर बताते जाता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर सारी की सारी असेंबलर डायरेक्टिव्स नहीं बताई है, आपके सामने यहाँ पर मैंने कुछ ही असेंबलर डायरेक्टिव्स यहाँ पर बताई है। वो असेंबलर डायरेक्टिव्स थोड़ी सी है, कैसा, अगर आप टोटल अगर असेंबलर डायरेक्टिव्स अगर देखने जाओगे तो कम से कम 150-250 असेंबलर डायरेक्टिव्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। इतनी सारी आपको आज स्टडी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज के आज अगर मैंने स्टडी कर दिया है तो आप प्रोफेशनल लाइफ में वहां क्या करोगे। तो मैंने आपको यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है, जो बार बार अपने को लगती है, वो असेंबलर डायरेक्टिव्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाद में का आपका जो फर्दर स्टडी का पार्ट रहेगा वो आप वहां पर आए पूरे आपके जिंदगी में करते रहो, क्योंकि वो रिक्वायर्ड कभी रहती है कभी नहीं रहती है, लेकिन ये अक्सर लगती है आपको प्रोग्रामिंग में। तो वो असेंबलर डायरेक्टिव्स मैं आपको यहाँ पर कुछ लर्न करवा देता हूँ। उसमें से मैंने पहले लाइन में यहाँ पर कुछ लिख के रखा है, org, db, eq, end, कोड, डाटा, इन नाम को यहाँ पर एज असेंबलर डायरेक्टिव्स कहा जाता है। इनके कुछ मीनिंग रहते हैं, ये वो मीनिंग हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जाते हैं। ये मीनिंग के साथ साथ उनको कैसे यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग में, तो वो भी यहाँ बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पहला नाम रीड करता हूँ, ORG। द मीनिंग ऑफ ORG मीन्स ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो बिगिनिंग और अ स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आप लिखे हो वो प्रोग्राम एक मशीन, एक असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है। वो असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम आपको इनक्लोज करना है यूजिंग ORG या END। एंड बोले तो एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी शुरू और खत्म, यानी स्टार्ट और स्टॉप। स्टार्ट को लिखा जाता है ORG और एंड को लिखा जाता है, स्टॉप को लिखा जाता है END। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ स्टार्ट को यहाँ नाम दिया जाता है ORG, लेकिन ORG के साथ एक नंबर लिखा जाता है, उसे कहा जाता है मेमोरी एड्रेस। वो मेमोरी एड्रेस वहां से शुरू करेगा आपके प्रोग्राम को वो लोकेशन में रखना, और वो मेमोरी लोकेशन से एंड तक, जहां एंड आता है वहां तक आपका प्रोग्राम रहता है। ओके, यानी फॉर एग्जांपल आप अगर कोई एरिया में रहते हो तो वो एरिया में आपका घर कहीं से स्टार्ट होता है और कोई प्लेस पर एंड होता है। उसी तरह प्रोग्राम भी एक प्लेस से स्टार्ट होगा और एक प्लेस पर एंड हो जाएगा। इन द सेम मैनर हम यहाँ पर ORG को कहते हैं ओरिजिन।
This directive is used at the time of assigning starting address for a module or a segment. यानी आप अगर एखादा मॉड्यूल यानी प्रोग्राम लिख रहे हो, मॉड्यूल या सेगमेंट को कहा जाता है, एखादा प्रोग्राम आप लिख रहे हो तो वो प्रोग्राम का बिगिनिंग स्टार्टिंग एड्रेस जो रहेगा वह एड्रेस हम यहाँ, हाँ सर हेलो, हाँ हाँ आया आया सर, आया आया 2 मिनट है, लिख निकाला निकाला निकाला, आता आया आया 2 मिनट, आया आया 2 मिनट, हाँ लेक्चर एंड कर रहा हूँ, बताओ चालू चालू था, कोई टेंशन नहीं, 2 मिनट में आता हूँ, हो गए हैं, ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके। तो असेंबलर डायरेक्टिव्स आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो, org 1050h, 1050 is a number, is a number, it will be a 16-bit number, it is a 16-bit address, this 16-bit address tells you here beginning of address। और आप एंड करते हो तो एंड में आप सिर्फ एंड लिखोगे और उसके आगे कोई एड्रेस नहीं रहेगा, तो एंड को कहा जाता है एंड ऑफ प्रोग्राम। तो जनरली एंड ये डायरेक्टिव्स यूज की जाती है टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, तो याद रखिए इस तरह आप ये दो असेंबलर डायरेक्टिव्स का यूज करोगे। आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस असेंबलर डायरेक्टिव्स। और कुछ असेंबलर डायरेक्टिव्स बाकी है, मैं धीरे धीरे आपको अगले वीडियो में उसे कंप्लीट करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वेरी फैंटास्टिकली, इफ नॉट प्लीज आस्क इन व्हाट्सएप। ओके, तो देखो ध्यान दो, बराबर लिखो, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। बाय फॉर नाउ।